Okay, menstruation mock test. We have 10 questions. The length and breadth of the rectangle in the ratio 4:7. तो वी हैव अ रेक्टेंगल जिसका लेंथ एंड ब्रेड्थ का रेशियो कितना है 4:7. वी कैन टेक इट एज 4x एंड 7x ले सकते हैं. ओके, इफ द पेरीमीटर इज 88 सेंटीमीटर, तो पेरीमीटर क्या होता है आपका 2l प्लस b. दिस इज लेंथ एंड दिस इज ब्रेड्थ. तो ये ऐसे नहीं बनेगा रेक्टेंगल, ऐसे लंबा वाला बनेगा. 7 विल बी, मैं बना देता हूँ. यू शुड नॉट बी इन कंफ्यूजन की 4x 7. सी जो बोला है वो करना है बस आपने. Length is 4 and breadth is 7. So the rectangle will be like this. Is this a rectangle or not? It is a rectangle. Not necessary कि length ऐसे होना चाहिए. So length and the breadth. So I have taken it as a 4x and 7x. So we know the perimeter is equals to 2l plus b. So perimeter is how much? 88 is equals to 2. That is length is 4x, breadth is 7x. Correct? So 7 plus 4 is 11. 11 plus 2 is 22. 22x is equals to 88. X is equals to 88 divided by 22. तो 4 आ गया x का वैल्यू. तो ये लेंथ कितना हो जाएगा आपका? लेंथ विल बी 4 इंटू 4 16. ये कितना हो जाएगा? 7 इंटू 4 28. फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल. एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ. दैट इज 16 इंटू 28. कितना होगा? कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं हम लोग. हाँ करेक्ट है. एक सेकेंड. हाउ मच इट विल बी? 16 8 is 128. 12 carry 16 to the 32. 32 plus 12 is 44. The answer is 448. ऑप्शन सी. इजी है. लेंथ एंड ब्रेड्थ का रेशियो दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया, तो वी कैन फाइंड आउट. The second question. The radius of a circle is 14 centimeter. What is the area of another circle having radius 1.5 times of the actual circle? So we are talking about two circles, the circle 1 and circle 2. So here the radius is 14 centimeter and here the radius is 1.5 times of the actual. तो इसका into 1.5 करना है. तो मुझे वैसे भी पता है इसका 50% 7 होता है. 100% is 14. 7 plus 14 is 21 centimeter. If you do 14 into 1.5, you will get 21 centimeter only. Is it clear? तो मेरा दिमाग क्या बोलता है कि 1.5 टाइम्स मतलब 1 टाइम प्लस 0.5 50%. दैट इज 14 प्लस 7 21. तो इसका क्या पूछा है? वो एरिया. व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस सर्कल? पाई आर स्क्वायर. That is 22 by 7 into 21 into 21. R is, this is R. So 7 3s are. So 22 3s are 66 into 21. तो ये आपका 66 10s are 66 10s are 66 1s हो जाएगा. 660 660 plus 66 कर सकते हैं ऐसे. 6 18 1386. What I did, ये 20 है ना, तो 66 10s are 66 10s are और 66 1s are. करेक्ट. तो 1386 ऑप्शन बी. What is next? A square and an equilateral triangle have the same area. So we have one square and we have one equilateral triangle. What do you mean by equilateral triangle? All sides are equal. तो दोनों का क्या है? सेम एरिया. इसका और इसका एरिया सेम है. If the perimeter of the square is 88 centimeter, इस स्क्वायर का पेरीमीटर कितना है? 88. Then find the area of the equilateral triangle. ये ट्रायंगल का एरिया कितना है करके पूछा है. इसका एरिया इसके एरिया के बराबर ही होगा, because area is same. Area of square and equilateral triangle is same.
So we know the perimeter is 88. What is perimeter? 4a. This is a, this is a, this is a, and this is a. A plus a plus a plus a. 4a. So can I say 4a is equals to 88? So a is equals to 88 divided by 4, that is 22. तो एरिया क्या होगा? एरिया इज इक्वल टू 22 स्क्वायर, ए स्क्वायर, that is 484, and this area and this area is same. तो आंसर is 484. कितना इजी है. The next one, area of a rectangle having length and breadth in the ratio 4:3 is, देखो ये दिया हुआ है ना, this area 4:3 इसका रेशियो है. तो कैन आई टेक इट 4x and 3x, and area is 432 सेंटीमीटर. तो कहना है एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ आए ना. 4x इंटू 3x इज इक्वल टू 432. एवरीबडी 4 3 12, 12x स्क्वायर. ये पक्का x स्क्वायर लेना है. 12x लोगे तो गलत हो जाएगा. यू नीड टू टेक 12x स्क्वायर. या ज्योति करेक्ट. तो 432, यहाँ पे x स्क्वायर निकालने के लिए 432 डिवाइडेड बाय 12. 12 3 36, बच गया कितना आपका? 772. 12 6 72. तो x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 36. स्क्वायर हटाने के लिए इसको स्क्वायर रूट करना पड़ेगा. तो x का वैल्यू आ जाएगा 6. तो दिस इज 4 इंटू 6 एंड दिस इज 3 इंटू 6. ये कितना हो जाएगा? 18, and this is 24. Now what they ask is a square whose side is equal to the diagonal of the rectangle. तो ये diagonal पता करना है अपने को. तो it's a Pythagoras लगा सकते हैं हम यहाँ पे. The hypotenuse, diagonal is nothing but a hypotenuse, which is equals to sum of squares of square root of sum of other two साइड स्क्वायर. करेक्ट. तो ये डायगोनल आपका हो जाएगा 24 स्क्वायर प्लस 18 स्क्वायर का स्क्वायर रूट. पाइथागोरस याद है सबको? तो ये 24 इज हाउ मच? 576. 324 दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 900. तो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा डायगोनल. तो पूछा क्या है? अ स्क्वायर हुज साइड इज इक्वल टू द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, देन फाइंड द रेशियो ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ स्क्वायर. तो वो बोल रहे कि यहाँ पे एक स्क्वायर है. देयर इज अ स्क्वायर ओवर हियर जिसकी साइड 30 है. तो इसका पेरीमीटर एंड एरिया का रेशियो क्या होगा? पेरीमीटर कितना होगा? 34 120. एरिया क्या होगा? 30 स्क्वायर, दैट इज 900. 0 0 कट हो गया. 6 2 6 1 6 5 2:50. Correct. The fifth one, if the length of the rectangle increases by 40% while keeping the breadth constant, then the area of rectangle increased by 24 meter square and the perimeter of the original rectangle is 32 meter. Find the breadth of the rectangle. देखो एक रेक्टेंगल है नॉर्मली, दिस इज लेंथ एंड दिस इज ब्रेड्थ. तो व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर इंक्रीजिंग द एरिया बाय 40, इंक्रीजिंग अ लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 40%. तो ये ब्रेड्थ कांस्टेंट, तो यहाँ पे ब्रेड्थ सेम है, ओनली द लेंथ इज इंक्रीज बाय 40%. तो L इज 100%, तो इसको 40% ऐड करेंगे तो 1.4 L हो जाएगा. is 1.4 L है ना. एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज. इसका एरिया जो है ना इस एंड इसका एरिया का डिफरेंस इज 24 मीटर स्क्वायर. व्हाट इज द एरिया ओवर हियर? 1.4 L into B. दिस इज द एरिया एंड इसका एरिया L into B. इसमें 24 मीटर स्क्वायर का डिफरेंस है. तो कैन वी से दैट कि दिस इज 1.4 LB माइनस LB इज इक्वल टू 24. तो इसमें से 1 माइनस होगा, 1 है यहाँ पे हिडन, 1 माइनस होगा तो वी हैव 0.4 LB इज इक्वल टू 24. LB इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाय 0.4.
इंटू 10 दोनों साइड में करेंगे तो 240 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज 60. तो वी नो LB is equals to 60 and the perimeter of the original rectangle is 32 मीटर. इसका जो रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना है 32 मीटर. तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है 2L plus B is equals to 32. तो LB कितना हो जाएगा 32 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 16. तो यहां पे आपको पता है LB कितना है आपका 60 है, L plus B कितना है 16 है. तो प्रोडक्ट 60 होना चाहिए एंड सम 16 होना चाहिए. तो 10 and 6 कैन वी टेक. दिस इज लेंथ एंड दिस इज ब्रेड्थ. सिंपल. तो पूछा क्या है ब्रेड्थ दैट इज 6 सेंटीमीटर. If we know the product and if we know the sum, we need to split the product in a such a way that sum should be 16. So 10 6 is 60 and 10 and 6 is 16. Correct? Clear? Next is a sphere melted and molded into solid cylinder. एक sphere है उसको हमने cylinder में convert किया. तो what will remain same? Volume will remain same. स्पेयर है. देखो अगर एक देखो ये स्पेयर समझ लेते हैं इसको, ये माउस को स्पेयर समझ लेते हैं एंड दिस इज. इसको मैंने क्या किया मोल्ड किया, पूरा मेल्ट कर दिया एंड इससे एक सिलेंडर बना दिया. समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं. दी वॉल्यूम विल रिमेन सेम. सी एरिया में चेंज. वो स्फीयर है उसका मैं एक शीट बना दिया तो वो एरिया विल इंक्रीज, सरफेस एरिया विल इंक्रीज डेफिनेटली. इसको भी अगर ये सिलेंडर को मैंने वो मेल्ट करके एक वो बना दिया शीट बना दिया तो एरिया विल इंक्रीज. वॉल्यूम विल रिमेन सेम. कंटेंट वॉल्यूम इज नथिंग बट हाउ मच इज दी कंटेंट. तो वॉल्यूम विल रिमेन सेम. तो मैं बोलूं इसका और इसका वॉल्यूम सेम है. एवरीबडी स्पेयर इज मेल्टेड एंड मोल्ड इनटू द सॉलिड सिलेंडर. The radius of both solid is equal. इसका radius and इसका radius equal है. Then find the ratio of total surface area of the sphere to the total surface area of the cylinder. देखो हमें total surface area of the sphere and total surface area of the cylinder का रेशियो चाहिए. हमें रेशियो चाहिए 4 pi r square divided by इसका क्या होगा टोटल सरफेस एरिया 2 pi r plus h. Total surface area of sphere and total surface area of cylinder. TSA sphere and TSA cylinder. तो यहाँ पे मुझे अगर रेशियो बनाना है तो h को कट करना पड़ेगा. तो कैन आई गेट दिस h इन द फॉर्म ऑफ r. वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द वॉल्यूम? 4/3 पाई क्यूब इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच. बोथ आर इक्वल. तो अगर मैं h को यहां पे रख दूं दिस पाई विल कम दिस साइड एंड कैंसल. पाई दिस इज 4/3 पाई आर क्यूब. पाई आर क्यूब. समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूं मैं? दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर एंड वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर. तो दिस पाई एंड पाई कैंसल्स. ये आर स्क्वायर इधर आएगा तो इसमें से आर क्यूब में से ओनली आर बच जाएगा. तो कैन आई से h इज इक्वल टू 4/3 r. तो इसका वैल्यू पता करते हैं एंड इसका वैल्यू पता. दिस विल रिमेन सेम. इसका वैल्यू पता करते हैं 2 पाई r प्लस h की जगह पे रख दूं मैं 4/3 r. तो ये कितना हो जाएगा? मिक्स फ्रैक्शन की तरह ट्रीट करेंगे इसको. 3r प्लस 4 इज 7r. 7r/3. और यहाँ पे 2 इंटू पाई इंटू आर. मैं इसे लिख देता हूं ढंग से. इसका वैल्यू 7/3 आर आ रहा है एवरीबडी.
3 1 3 into r is 3r plus 4r 7r by 3. So 2 into pi into r into 7 by 3 into r. करेक्ट. तो 7 टू 14, 14 by 3 हो गया पाई आर स्क्वायर. तो बस इसका रेशियो निकालना है अपने को, दैट इज दिस रेशियो. 4 पाई आर स्क्वायर 14 by 3 पाई आर स्क्वायर. तो ये पाई पाई आर स्क्वायर कट. व्हाट वी आर लेफ्ट विथ 4 into 3 by 14, that is 12 by 14. 2 6 are 2 7 are 6 is to 7. प्रे रेणू आले येऊन गेली. 6 is to 7. Is this clear? बस एसएससी वाले कोई आए नहीं. व्हाट हैपेंड? तो गीता आप अटेंड करेंगे क्लास, एसएससी क्लास? Let them attend online. Padmashri will also attend online, no issues. Okay, next is 7. Question number 7. The sum of length of rectangle and the side of the square is 72 centimeter. If the perimeter of the rectangle is 84 meter and the breadth of the rectangle is 18 meter. तो यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना लो और यहाँ पे एक स्क्वायर बना लो. ठीक है. Sum of the length of the rectangle, length is L and the side is 72 meter. So we know that L plus A is equals to 72. चलेगा. If the perimeter of the rectangle is 84 meter and the breadth of the rectangle is 18 meter, तो इसका perimeter क्या होगा? Perimeter is 2 L plus B. And they have given breadth is 18. This is given. ये कितना है? 18 है. तो कैन वी फाइंड आउट L ओवर हियर? L पता चलेगा तो A भी पता चल जाएगा. तो I'll put this value. The perimeter is 84. 2 is equals to 2. We don't know the L. Breadth कितना है? 18 है. तो this 84 is equals to 2L plus 36. तो 36 इधर जाके माइनस होगा. 2L is equals to 84 minus 36. तो कितना बचेगा बताओ? 30 माइनस करेंगे तो 50 बचेगा. 6 माइनस करेंगे तो 48. 2L is equals to 48. L is equals to 48 divided by 2, that is 24. Now we have this equation. यहाँ पे L का वैल्यू डालते हैं. L is 24. 24 plus A is equals to 72. तो आपका A कितना हो जाएगा? 72 minus 24. 20 माइनस करेंगे तो 50 बचेगा. एंड 4 माइनस 52 बचेगा. 20 माइनस 4 माइनस करेंगे तो 48 बचेगा. आई थिंक A is equals to 48. Then find the measure side of the square. 48. Option A. Option A. Is it correct? समझ में आया? सी जो लिखा है उसको लिखते जो आंसर आता जाएगा. नथिंग मच. यू शुड नो द फॉर्मूलाज. एंड मैंने कुछ हाई फाई फॉर्मूला भी नहीं दिए. सिंपल बस एक स्पीयर वाला फॉर्मूला एंड उसका फॉर्मूला. थोड़ा फॉर्मूला याद करने पड़ेंगे. लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 125. देखो रेक्टेंगल है यहाँ पे एंड द लेंथ इज 125% ऑफ इट्स ब्रेड्थ. तो ये अगर ब्रेड्थ आपका 100 है तो लेंथ कितना है? 125. is it a actual value or ratio? It's a ratio. I'll take it small. क्यों बड़ा लेना? इतना बड़ा रेशियो नहीं चाहिए मुझे. तो 4:5 क्या रेशियो है? and the area is 1280. तो can I take it 4x 5x? तो एरिया विच इज 1280 वो क्या होगा? लेंथ इनटू ब्रेड्थ.
that is 5x into 4x is equals to 1280. So how much it is? 20x square is equals to 1280. X square is equals to 1280 divided by 20. 0 0 कट, 2 से 64 टाइम्स आधा होता है 128 का. सी ये सब आपको करते करते आएगा. 128 का हाफ 64 दिमाग में छप जाएगा. 128 का डबल 256. सी दिस थिंग्स विल हैव द इम्प्रिंट. इतना प्रैक्टिस करना है कि इट शुड हैव द इम्प्रिंट. तो x square is equals to 64, x is equals to square root of 64, that is 8. Is this clear? Now can you tell me the sides? देखो क्वेश्चन क्या पूछा हो देख लेते. We'll just see the question first. If the width of the rectangle is half of the side of the square, then find the perimeter of square. तो width and breadth is same. Width and breadth is same. तो ये कितना है? 4x है, मतलब 4 into 8 32 है. Is this clear? तो यहाँ पे एक स्क्वायर है. This is a square. आप आंसर बताएंगे. I'll not tell you the answer now. If width of the rectangle A is half of the side of the square, then find the perimeter of square. ये A कितना होगा? If the width of the rectangle A is half of the side of the square. Excellent. This is very confusing statement. कल से मेरा वाइफ के साथ बहस हो गया इसमें. She is telling 32 का हाफ 16 होगा करके. See, they're trying to confuse you. Width of the rectangle A, 32, is half. This is half of the side of the square. This 32 is half of the side of the square. So side of the square is 64. इसका पेरीमीटर कितना होगा? 64 into 4. और ये उन्होंने भी गलत किया बुक के अंदर. 4 4 the 16, 1 carry, 6 4 the 24 plus 1 is 25. Answer is 256. So they will try to confuse you. And you can stay out of confusion with the practice. ये करते रहे. या Padmashri, you are correct. Excellent. 64. Answer is not 64. Side is 64. Perimeter is 64 into 4. Okay, the ninth one. Ratio of base and the perpendicular side of the right angle triangle. हाँ, तो that's why I said कि perpendicular side. See, ये right angle triangle में one angle is 90 degree. This is perpendicular side. This is base. And this is hypotenuse. तो perpendicular side 3 है, base 4 है. Is this a actual value or ratio? Ratio. So I'll take it as 3x and 4x. And its base is equal to side of the square having area. Okay. तो ये जो 4x है ना, देखो, base is equal to the side of the square having area 81 सेंटीमीटर. यहाँ पे एक स्क्वायर है जिसका एरिया कितना है? 81 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो इसका साइड कितना होगा? स्क्वायर रूट. देखो, एरिया इज इक्वल टू ए स्क्वायर. तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 81. तो ए इज इक्वल टू स्क्वायर, हाँ 9 होगा. देखते ये सब लिखने की जरूरत नहीं है. ए इज इक्वल टू 9. एक सेकेंड. बेस इज 3x एंड ये उल्टा लिख दिया. बेस इज 3x. पहले बेस बोला ना, बेस टू परपेंडिकुलर. तो फर्स्ट वैल्यू इज द बेस. तो दिस इज 4x. तो कैन आई से 3x इज इक्वल टू 9. तो x इज इक्वल टू 9 by 3, दैट इज 3. तो ये कितना हो जाएगा? 4x मतलब 4 into 3, 12. तो ये 12 है और 3 है. ये निकालो. फाइंड दी पेरीमीटर ऑफ. पेरीमीटर निकालने के लिए बोला है. पेरीमीटर निकालने के लिए पहले ये निकालना पड़ेगा. वी नीड टू फाइंड दिस. हाँ या ना? तो ये पेरीमीटर हाइपोटेनस क्या होगा? ये बाकी दो साइड का स्क्वायर रूट. 12 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, दैट इज 144 प्लस 9. तो कितना हो जाएगा आपका? नहीं 9 स्क्वायर. दिस इज 9 ना.
3x is equals to 9. This side is 9. This side is 12. ये x का वैल्यू 3 है, साइड इज 3x मतलब 9, तो 9 स्क्वायर दैट इज 81. तो ये हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ 225 दैट इज 50. तो पेरीमीटर क्या होगा आपका, एक साइड आपका 9 है, एक साइड 12 है और एक साइड 15 है. ऐड देम अप. तो कितना होगा 21 प्लस 50 दैट इज 36. हाँ बोलो भाई. मी कॉल करतो थांब 2 मिनिट, 2 मिनिटात कॉल करतो थांब तुला. सांग जरा ते पैसे द्यायचे आहे म्हणून. 2 मिनिट थांब. Okay, if the perimeter of the base of the cylinder is 66 centimeter, पेरीमीटर मतलब वो सरकमफ्रेंस बोल रहा है, पेरीमीटर यूज किया. तो एक सिलेंडर है इस टाइप से, इसका सरकमफ्रेंस कितना है 66 सेंटीमीटर. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर. ये क्या होता है पेरीमीटर, 2 पाई आर होता है, आया ना. तो ये कितना हो गया आपका 66. तो ये आपका आर का वैल्यू क्या होगा 66 इंटू 22/7 है, इधर आके 7/22 हो जाएगा. ये 2 इधर नीचे आ जाएगा आपका. तो 22 1 जा 22 3 जा 7 3 जा 21/2 आर का वैल्यू आ गया. तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच. एंड द हाइट इज गिवन 0.04 मीटर. 0.04 मीटर है, इसको सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इंटू 100. 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर. तो ये 2 जीरो से 2 प्लेसेस कट जाएंगे, इट विल बी 4 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे 22/7 आर मतलब 21/2 इंटू 21/2 इंटू हाइट इज 4. यस सर, गुड मॉर्निंग. 2 2 जा 4, 4 से 4 कट गया, 7 1 जा 7 3 जा 22 3 जा 66 इंटू 21, 66 10 जा 66 10 जा और 66 1 जा 6 18 and 13 1386. ऑप्शन बी. तो दिस वाज वन ऑफ द पद्मश्री 1386 is correct answer. Easiest. Was that easy? प्रणीता, महेश, what happened? तो तलवार को क्या ना वो हमेशा वॉर में यूज करते रहना चाहिए. आपने रख दिया उसको मियान में, निकालते भी निकलेगी भी नहीं हो वॉर के टाइम पे. दिस हैपेंस. ओके. तो पद्मश्री 11:30 आपका क्लास रहेगा एसएससी का. गीता इज हियर, पद्मश्री आप भी है, आफ्ताब और बाकी लोगों का देखते हैं व्हाट एवर दे विल डू, ऑनलाइन कैसे अटेंड करते क्या करते. बट विल हैव द क्लास, विल नॉट स्किप. कल से आपका उसका क्लास भी स्टार्ट हो जाएगा 8 o'clock. इट विल बी योर जनरल अवेयरनेस क्लास 8 to 9. चलो, दिस ऑनलाइन क्लास आई विल वाइंड अप.